इस पॉडकास्ट में हम स्कैम्स की बात करेंगे, फ्रॉड की बातें करेंगे, लेकिन and I'll add the resume in the description. So do add. When the pandemic happened, live show shut down. You know, Mike Tyson का एक बहुत famous quote है कि everyone has a plan until you get punched in the face. तो उनको तो यही लग रहा है कि मैं स्कैम कर रहा हूँ। मैं सुबह तो अपना कंप्यूटर लेकर बैठता हूँ और फोन लेकर बैठता हूँ, 10 बंदों को स्कैम करता हूँ। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आपने रिकैप में देख लिया होगा कि ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लाइट रहने वाला है, तो मैंने सोचा यार फाउंडर्स तो आ ही रहे हैं, साथ में अपनी एज ग्रुप के बच्चों को ले आता हूँ, अपने एज ग्रुप के लोगों को, और उनका ओपिनियन जानता हूँ ऑन वेब3 फ्यूचर एंड वेल्थ क्रिएशन। और हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं, पोशक दुआ, ट्रेस नेटवर्क लैब्स में वो मार्केटिंग एसोसिएट हैं। तो उनका भी एक इंडिविजुअल पॉडकास्ट आएगा। अगर आ गया होगा तो आपको आई कार्ड सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं आएगा तो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो देखिए पॉडकास्ट को कैसा लगता है, एक बार अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए कि क्या फीडबैक है आपका। एंड थैंक यू सो मच, एंजॉय द पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस गाइज। और मैं चाहता हूँ यार एक बार अपनी शॉर्ट इंट्रो दे दो सारे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पोशक भाई। Hi, I am Poshak Dua. I am working in Web3 for the past 1 year and really enjoying the experience. And but other than that, I'm a public performer, speaker, magician, mind reader, all of that. Great. So hello everyone, this is YATHARTH Jain. So as of now, I have been into this space from quite long. Right now, I have been doing the marketing consultancy and giving marketing things to the Web3 companies. And yeah, that is all about me. Okay, hello everyone. My name is HIMIKA. I'm a third year BTech student and currently I'm working as a development intern at Quill Labs and a social media and content intern at Audits. Hello guys, I'm AYUSH. I've been in this space for the past 5 years. I'm practicing as a blockchain lawyer. Apart from that, I have a company of my own, Builders. We're providing tech support at this point of time and tech consultancy regarding that. So thank you guys for doing this all, and I really appreciate you, and thank you so much for your time. और welcome to the Preetam's podcast powered by Desi Crypto and Quill Audits. So guys, मैंने तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ कर लिया, लेकिन पॉडकास्ट तो आई थॉट कि यार एक हमारे हम मेरे एज ग्रुप के भी होने चाहिए यार, एक चिल पॉडकास्ट भी होना चाहिए और एक यंगर लोगों की पर्सपेक्टिव भी आनी चाहिए करंट मार्केट के अंदर जो हो रहा है। और मैं यही कहूँगा यार कि ये हो क्या रहा है। स्टार्ट करेंगे पोशक भाई से। When you said no कि मैंने तो बहुत एंटरप्रेन्योर्स के साथ कर लिया, अब एज ग्रुप वालों के साथ भी करना, तो किस चीज़ की बात हो रही है? हमारे एज ग्रुप के लोगों के साथ भी वही हो रहा है जो सबके साथ हो रहा है। You're all getting fucked and it's pretty bad. I think every industry goes through these hype cycles. बहुत ज़्यादा Web2 went through it and I think now Web3 is going through it. A lot of hype gets into the space and with that a lot of fraudsters. Whenever there is a lot of money involved, a lot of fraudsters, scamsters, all of those people get into it as well. And I think these sort of bear markets or let's say liquidity, when there's a liquidity crunch, so a lot of the जो एक ऊपर का जो फ्लफ होता है ना, that gets away and only the people who are very passionate about this space या जो बेरोजगार होते हैं, like me, that's always a nice please hire me buddy, please hire me. So yeah, as rightly said by Poshak sir, I will call him sir man. नहीं सर की जरूरत चलो पोशक ब्रो। तो the thing is like that, जो initial cream layer होती है, that's the greedy ones which enter the industry on first hand. तो वही है यार कि जैसे जैसे it will evolve, तो जैसे अभी you might be knowing that FTX thing which has happened in the crypto industry. So उससे काफ़ी जो लोग greed में आए थे just for like making a couple of $100,000 or like couple of bucks, वो वहाँ से हट जाएंगे and only the true ones who are for the tech, maybe there's one popular meme for that, like for the tech and the guys wearing those bracelets, the golden ones. So yeah, for the tech will survive. Okay, so I do agree with इतनी सीरियस होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो I agree with both of them. I think just like what happened with internet when it first came,
वैसे ही Web3 में भी everything will get better. There are several use cases of Web3 which can be put to some very good use in the future, be it security or NFTs or anything, and the possibilities are endless. लॉयर साहब मैं तो छोड़ रहा हूँ Web3 आगे तुम अपना देख लो आगे यथार्थ I wanted to ask तो कितना लेगा वो यार सैलरी I to hire you bro don't know maybe 100 इतना अंडर कॉन्फिडेंट बंदे को तो मैं नहीं हायर Maybe- आगे देखो तुम तो बैठ चाहते तो देख ले तो यार हिमिका के क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं एंड इफ वी सी दैट पॉइंट ऑफ व्यू सो इफ यू से कि यार वेब 1 क्या था व्हाट वाज वेब 1 वाज ऑल अबाउट लाइक पीयर टू पीयर ट्रांसफर थिंग so think it in that way if we'll add a layer of immutability to web 1 isn't that web 3 Poshak sir we want you to answer वेरी गुड यथार्थ की सो हाँ तो वापस कुछ बकचोदी वाली बात करते हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं यथार्थ बीच में तो समझ नहीं आया आई थिंक यथार्थ चाह रहा है कि कोई उसको हायर कर ले इसलिए डिक्शनरी से सीख रहा है I'm just pre-trained buddy so like please hire me So can you expand on your question, Yatharth? I would love to really answer it. Yeah, so I'll just say like what was Web 1? Web 1 was all about setting up the servers at your home and at my home, and I'm sending you data and you are receiving data and you are sending me data and I'm receiving data, and that is peer to peer. If we'll add a layer of immutability to that, isn't that what the current state of Web 3 is? If we'll say. partially agree. So there are a lot of things in it. पहले तो Web 1 के टाइम पे we didn't have concept of all the apps Yep. that we have now, right? So whether it's social media and everything that emerged in the Web 2 space, right? So we didn't know what to decentralize at that point. Second thing is how do you build a peer-to-peer app in the Web 1 model? The whole idea of building a social media app came in the Web 2 model. So to build a social media app means you need lots of servers, right? You need a lot of database. Yeah. तो अब वो database कहीं तो होगा अब YouTube है तो YouTube का सारा server कहीं पे तो है, right? So then you need to decentralize, and that's I think Web 3 में then you need a lot of, so there are a lot of people trying to build decentralized Spotify or decentralized YouTube. I think the answer lies within that कि how do you figure out कि वो जो databases है Web 2 के how do you decentralize them, because peer to peer, yes, creating peer to peer money, Bitcoin did that. Yeah. But when it comes to trying to create peer to peer YouTube or peer to peer even Twitter, that is a challenge, right? And I don't think Web 1 can do it. Or the technologies we had at that time with Web 1 can do it. Yeah, you can also say कि with what Web 3 brings apart from just immutability is also the idea of token. जिससे सीने में दर्द होता है मुझे पता नहीं क्यों आजकल लेकिन even I think that is also a new concept, and I'm sure with token comes a lot of incentivization, which is also not in the Web 1 space. So you could not incentivize people in the Web 1 space to join a community or be part of a community, which Web 3 naturally has. So if you listen to what Balaji, अब ये थोड़ा सीरियस होने वाला है, मैं चाहता नहीं था इस पॉडकास्ट कोई नहीं, चलो ये यथार्थ सीखना चाहता तो आज को सीख के जाएगा, हेल्प आएगा तेरे को इंटरव्यू में. तो if you listen to what Balaji says in 2000s it was all about people who were browsing the internet. In 2010 it became about daily active users, and in 2020s it's all about holders. So with every passing decade it becomes about you're more and more attached to the apps you're using. So Web 1 mein we were just, yes, it was peer to peer, but we were just occasionally go on the internet and maybe interact with it. We started interacting daily with internet really when social media apps came, and now we are so close to the internet ki our NFTs are on internet, we are holders of different communities, different tokens and all of that, and so that's the Web 3 difference. Yeah, completely agreeing with you, but like I sort of gave you like, are we moving backward? That's what my main point of thing was. No, great. और भाई किसी को कुछ कहना है इस पे? Not as of now, but अच्छा हिमका हाँ तो like POSHAK said,
I think Web3 also adds some sort of a sense of community which wasn't there initially in Web1. Matlab, today the Web3 community is so welcoming. If somebody wants to learn, work in Web3 or is looking for opportunities, people are literally welcoming people, extending their arms ki aa jao, we will teach you, aa jao kar lo. Matlab, this wasn't there initially. Matlab, people had to learn everything on their own. It wasn't as easy before. Bro, I personally think that 90% of Web3 is hype. The thing is, there is a lot of unemployment in this world, and अब आप Amazon, मान लो Amazon एक बहुत बड़ी कंपनी है. अगर Amazon इनिशियल फेज पे होती है और Amazon आपको बोलती है कि you're a part of our community, और आप हमारे भाई बायर हो, और even if you're our seller or something like that, you will grow with us. They just give 1% or 0.1% of their equity, और कि कुछ भी दे देते, मतलब कुछ भी दे देते, स्टेक भी नहीं यार. मतलब the point is, most of these companies, most of Web3 companies are not giving anything. They're just creating the hype through unemployed talent in this world. So that is what is happening in Web3 as well. Most of the business models doesn't have any logic in it. I don't believe in DeFi. I'll be very honest. I don't. मतलब DeFi does make sense, but it has a very long way to go. Right now, यार आपने देख लिया UST के साथ क्या हुआ कि कोई मतलब UST is not a DeFi, but मतलब कोई logic नहीं लगता मेरे को most of it में. But honestly, where I feel Web3 will thrive is जहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस मॉडल हो जहाँ पर यूजर यूज कर रहा है और यूजर को एक बेनिफिट मिल रहा है आउट ऑफ इट, समथिंग लाइक यूट्यूब. I feel YouTube is one of the most wonderful business models because anybody who is creating a YouTube video is being rewarded in it. अब यही बात है कि कस्टमर देख रहा है वो YouTube वीडियो, at the same point of time अगर कस्टमर भी रिवॉर्ड हो फॉर गिविंग हिज टाइम, then that business model can thrive according to me. Otherwise, most of Web3 I feel is hype related because I don't feel कि आप decentralized social media बना सकते हो और मतलब उसको इतना incentivize कर सकते हो कि you can take upon a centralized social media platform. Doesn't make a lot of sense to me, honestly. तो मेरे हिसाब से बस काफ़ी ज़्यादा hype related ही है Web3. मैं बहुत projects जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा they are doing very well, but I don't see any logic in that. Mainly it's just because everyone feels a sense of ownership to the project. That's why everyone shills it, and there is a lot of black money. Like कोई कहने की बात ही नहीं है यार कि मतलब बहामास में कितना पैसा पड़ा है लोगों के पास. लोगों को अपना ब्लैक मनी कहीं ना कहीं बात करना ही होता है, and it's just a white way to launder money. Web3 is just a white way to launder money. लोग बाकी फालतू जगह पे देते थे, पॉलिटिक्स वगैरह में लॉबी करवाते थे, टेररिज्म में देते थे, फालतू जगह देते थे. अब उनको लग रहा है कि यार वो पड़ा हुआ पैसा उनको बैठा के यार मतलब सीड राउंड में इन्वेस्ट करो आप $1 मिलियन, आपका वो कितना 30 मिलियन $500 मिलियन हो जाता है. तो what everybody is doing is the smartest minds there are just parking their money in early stage startups. They're parking the money. वो फर्स्ट राउंड में भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, VCs होते हैं, हमने खुद करा यार कि $10 मिलियन उठाया मार्केट से, $10 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया, फिर पब्लिक के पास जाता है. हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं when we are always the ones who gets fucked up. कभी भी पब्लिक पैसा नहीं कमाता है ऐसे चीज़ों में, क्योंकि VC भी पैसा निकाल लेता है, सीड राउंड वाले भी निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते हैं, और उसमें कोई प्रोजेक्ट का लॉजिक है नहीं. तो अब आप कितना डिसेंट्रलाइज, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट एनीवन, दैट्स जस्ट हाउ आई फील. अब कितना डिसेंट्रलाइज है सोलाना, कितना डिसेंट्रलाइज है आप देख लो. 10th को $30 मिलियन के आसपास सोलाना अनलॉक होने वाला था, 30 मिलियन सोल अनलॉक होने वाला था. वो उन्होंने रोक दिया क्योंकि FTX कोलैप्स हो रहा था. व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन है? व्हाट इज द लॉजिक इन इट? भाई अगर वो अनलॉक हो जाता विद द FTX कोलैप्स, वो सारा का सारा सोलाना वो VCs और जिन्होंने भी अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो सारे बेचने ही वाले थे यार. सोलाना तो कोलैप्स ही हो जाता ना. तो अगर जो ब्लॉकचेन यार इतना ज़्यादा बड़ा होके भी मतलब इट्स सो रेलेवेंट इन दिस टाइम, इट्स इन दिस डे एंड टाइम कि मतलब हमने हाकर उसको सबने में वही किया था, अटेंड करेगा. सोलाना जैसा ब्लॉकचेन यार 1-2 दिन, विद इन 2 days इट कैन कोलैप्स.
then what is the logic in that? मतलब decentralization, I feel centralization होता है तो थोड़ा मतलब control तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मतलब देख सकता है ना कि अच्छा ठीक है, somebody is held responsible. Who will be held responsible अगर कल के दिन सोलाना collapse हो जाता, which was very close to, मतलब सोलाना was very close to being collapse. It's just कि वो decentralized नहीं था इसलिए वो collapse नहीं हुआ. अगर वो completely decentralized होता 30 million soul unlock हो जाता और वो collapse होना ही था यार, तब still pressure तो सोलाना ले ही नहीं सकता था मेरे हिसाब से. So then my question to you is, why are you still in Web3? भाई पैसा इधर ही है ना यार. So मैं तो पैसा कमाने आया हूँ. मैं तो I'll be very frank with you. It's not like I'm not a very. But I don't also, believe it. like a genuine question is, maybe short term में पैसा है, but if you don't think there's long term value that can be created, तो long term में पैसा भी नहीं होगा. Bro, at the same point of time, what I am offering, I am a lawyer, right? What I am offering is services. So, at the end of the day, I have calculated these things. At the end of the day, everybody needs a lawyer. When Sam Bankman-Fried fucked up, they needed a lawyer. So you think there's going to be a lot of fuck-ups in Web3? Oh, honestly, 110%. There's no denying it. I genuinely believe this. I think NFT space में with IP rights and everything. Most of it, yeah. Offshore entity registration, because nobody wants to, start a company from India because the laws are so fucked up. The countries. हाँ तो ये बताइए क्यों जा रहे हैं मतलब बाहर लोग, मतलब जितने फाउंडर से बात करो, कोई दुबई जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, क्या सीन है? What the logic is? Exactly क्या सीन है? Bhai, the point is, it's not very difficult to get a funding in Web3. Firstly, it's very easy because everybody needs their funds to be parked. आज के दिन मुझे भी कोई बोलेगा यार कि मतलब कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर तुम अपना फंड पार्क कर सकते हो. मेरा फंड मेरा कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है फालतू का है, मैं पार्क कर दूंगा अगर इफ आई ट्रस्ट द प्रोजेक्ट. तो ऐसे बहुत लोग हैं. मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास दे हैव मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इट्स जस्ट लाइंग अराउंड. तो यार पॉइंट ये है कि फंडिंग मिल जाती है आसानी से. अब बात ये होती है कि यार फंडिंग मिल गई तो दे डोंट माइंड स्पेंडिंग $10,000 registering outside of India or outside or in another country just to be safe and compliant. It's just about them. It's not about the company. It's just about them. If they're registering in India and they fuck up in India, अगर Sam Bankman-Fried इंडिया में होता, इतने डंडे मारते ना उसको, इतने डंडे मारते ना आज के दिन में उसको, कहीं का नहीं होता भाई वो. बहुत simple fact है bro. Why is he safe? Because he's in Bahamas. And most of his companies, most of the fucked up he did was all over the world. It was not because he was that is fact. ये बात लोगों को नहीं पता, but वो बहामास के लोगों का पैसा दे रहा था. पता है आपको? जब FTX बंद हो गया, FTX के withdrawals बंद हो गए, जब FTX bankrupt हो गया, सब उसने डिक्लेयर भी कर दी bankruptcy, उसके बाद वो बहामास के बंदों का पैसा दे रहा था. क्यों? क्योंकि उसको बहामास में नहीं फंसना था यार, जेल करवा देते वो लोग यार. तो मतलब उस स्टेट या जहाँ उस कंट्री में वो रह रहे हैं, उसके कंप्लायंसी के चक्कर में उसने ऐसा किया. तो मतलब that is what I feel यार. और coming back to your question, I'm really sorry I got derailed a bit. भाई, the point is in our country the people who are sitting at the top doesn't have the brain to comprehend what's going on in Web3. No offense Modi ji, sorry. But they don't understand कि क्योंकि यार जो निर्मला सीतारमण ने लॉज बताए हमें, वो उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है यार. अगर 30% टैक्स तो कर दिया उन्होंने, बट उन्होंने ना डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स का कुछ बताया, ना उन्होंने कोई कंपनी या कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करा चेनालिसिस जैसा, जो यूएस में चेनालिसिस है. बेसिकली व्हाट दे डू इज दे आर ट्रैकिंग एवरी ट्रांजैक्शन और एवरी वॉलेट व्हिच होल्ड्स ओवर $1,000 to $2,000. तो आपके अगर वॉलेट में भी ऐसा पैसा है तो चेनालिसिस के आप नजर में हो. चेनालिसिस ट्रैक्स एवरीथिंग. अब जो बड़े बड़े हैकर्स है ना, जो 2017 में बिटफिनिक्स कुछ करके एक हैक हुआ था, बिटफिनिक्स का सॉरी, तो उसका भी हैकर चेनालिसिस नहीं पकड़ा था. तो ना उन्होंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर कर लगा. भाई क्या पॉइंट है, मतलब ना उन्होंने मतलब कुछ भी उन्होंने दे जस्ट वांटेड टू बैंक अपॉन द ट्रेडिंग जो हो रही थी एंड प्रॉफिट्स व्हिच पीपल वर earning. They just wanted to bank upon that. इसलिए उन्होंने 30% टैक्स लगा दिया और 1% TDS ऊपर से लगा दिया कि हाँ भाई तुम्हारे पास एक बैक मैकेनिज्म ना हो. But it doesn't have any logic in it. The law doesn't have any logic in it because उस लॉज के इतने सारे लूपहोल्स है कि बस
जो बहुत छोटा आदमी है ना एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जो छोटे लोग हैं ना वही फंसते हैं यार। हमारा क्या, हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में वॉलेट में ले जाएंगे, हम दुबई पैसा भेज देंगे और दुबई से वापस पैसा आ जाएगा, हमें उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके वो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो छोटे ट्रेडर्स हैं वही टैक्स दे रहे हैं, वही सफर कर रहे हैं, और कोई क्लैरिटी नहीं है टैक्स लॉ में भी, कोई क्लैरिटी नहीं है। आई डोंट वांट टू गिव अ लेक्चर ऑन लॉ में क्या क्लैरिटी है कि नहीं है। So this is getting more serious, but one last question: do you think India or any of these countries are waiting for US to first regulate? Because frankly, even the US is so behind in all of this. Yeah, the thing is, I was also thinking US are regulating. मतलब US के laws ना are far better than India right now. US का mechanism भी बहुत अच्छा है, काफी अच्छी तरीके से US काम कर रहा है. Obviously, they also lag behind. और हाँ बोलो अच्छा, I'm saying they also lag behind in a lot of things, but US are doing a great thing right now. जैसे Wyoming वगैरह होगा. Wyoming is the only मतलब is the only second state, अभी recently एक और state हो गया which recognizes DAOs जो होते हैं आपके, DAOs को एक स्ट्रक्चर, Wyoming एक ओनली जगह है जहाँ DAO को स्ट्रक्चर दिया जाता है। वरना अब अगर आप मान लो हम चारों का एक DAO है, ठीक है, और प्रीतम ओनर है DAO का, मतलब सबको पता है प्रीतम का DAO है, सुपर टीम DAO है प्रीतम की, ठीक है, और मैं उसका एक मेंबर बन जाता हूँ, एक कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाता हूँ, मैं उस DAO का पब्लिकली मेंबर हूँ, और मैंने मान लो यथार्थ से कोई डील कर ली $1 million की और स्कैम कर लिया यथार्थ को, तो प्रीतम इज ऑल्सो पर्सनली लायबल फॉर द स्कैम, सॉरी, बिकॉज ही इज जस्ट पार्ट ऑफ द DAO. दैट्स हाउ इट फंक्शंस. मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, बिकॉज दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर फंक्शंस. तो Wyoming इज द फर्स्ट कंट्री और सॉरी द फर्स्ट स्टेट which gave the structure to a DAO, कि आप DAO में मेंशन कर सकते हो कि अच्छा भाई मैं प्रीतम हूँ, मैं ही डिसीजन ले सकता हूँ कि इतनी की फंडिंग है, इतनी की पार्टनरशिप हो सकती है, वरना यार किसी और ने कर लिया तो हम पर्सनली लायबल थोड़ी हो जाएंगे. And how come it's a DAO? Like you are saying कि rules को हम और imply कर दे उसे decentralized autonomous organization पे. Bro, it's all about giving structure to it. That's yeah, the rules we can add more rules to that so that it will be more functional in the like daily life or like in the modern world. It's just about giving structure to it firstly, और secondly limited liability हो जाती है. अगर मान लो मैंने $1 million का, हम लोग DAO में चारों बंदे, मैंने $1 million का स्कैम कर दिया, तो हमारे सारे पर्सनल एसेट्स भी बैक्ड होंगे विद व्हाट इज हैपनिंग, कि वो स्कैम पे मतलब मेरा घर बिक सकता है भाई. तो ये होता है कि आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसमें आपकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहती, DAO का जितना पैसा है आपके पास और जितनी भी वो है वो आपकी लायबिलिटी में जाएगी. I think यथार्थ is just worried कि पहले तो मैं बेरोजगार ऊपर से घर में बिठा लूं. चाहता क्या, Web3 ने दिया कुछ नहीं, ले लिया मुझे. I'm like MC Stan, मेरा घर जाएगा इसमें. घर, कपड़े, जूते सब जाएगा, वो सिर्फ पॉलीगॉन की टी-शर्ट लेके बस यही गोवा में घूमेगा. I'm like मोदी जी झोला लेके निकल पड़ते हैं. So yeah, this was I think प्रीतम काफी डेप्थ में चले गए, पैशनेट हो गए कुछ ज्यादा. सो हम लोग दिखते छपरी है, बट हमसे काफी नॉलेज है. थैंक्स ब्रो, लॉट ऑफ इनसाइट्स. कुछ हल्का करना पड़ेगा. पर मुझे लगता है ना, हाँ, जैसे कि .com से पहले हुआ था कि काफ़ी लोगों ने लेवरेज किया, उसके बाद असली जो बेकार ऐसे स्टार्टअप जिनका कोई यूज़ केस नहीं था वो क्रैश हो गए, उनका कुछ नहीं हुआ. लेकिन जो रियल यूज़ केस वाले स्टार्टअप्स है ना, मुझे लगता है फिर भी वो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली चलने वाले. मतलब जब तक आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप कोई सी भी टेक यूज़ कर लो. NFTs के देख लो यार, क्रिप्टो डिक बट्स, मतलब इसमें क्या यूज केस है. बट आई एम श्योर एटलीस्ट 2-3 NFT प्रोजेक्ट्स निकलेंगे जो कि एक्चुअल रियल बिजनेसेस बन जाएंगे. और अभी कोई सोच नहीं रहा है, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट यूट्यूब में भी 20 साल लगे, बट टुडे मिस्टर बीस्ट इज अ रियल बिजनेसमैन. एंड आई एम श्योर देयर आर couple of other businesses like that who can become like YouTubers, who can go maybe public with an IPO because they have a YouTube business which is funding a lot of other of their businesses. So I think NFTs may maybe not now, but 10-15 years from now that can happen. And also if you see where the world is going, Chamath Palihapitiya, he was talking about this कि 2000s में what we were doing was we were building internet की infrastructure. So Google and Microsoft basically built a lot of the infrastructure of the internet. In 2010s we were building apps, so whether it was Facebook or YouTube. Okay, and now what is happening is in 2020s
it's the creators who are now at the center stage. So we don't give a fuck if Joe Rogan is on Spotify or YouTube or whatever platform. It's Joe Rogan that matters. Okay? So it's the creators where all the value is going now. So NFTs is another way for creators to monetize. Yeah, And absolutely. Web3 में बहुत सारे ऐसे platforms हैं वो working on creator economy or anything like that. So yeah, do subscribe to Preetham's podcast. Thank you. I 100% agree to what you said about creators वाला part, क्योंकि यार आप देखो कि ये मैकेनिज्म कितना फ्लॉड था कि बड़े बड़े आर्टिस्ट अपने आर्ट बना के बेचते थे. सप्लाई चेन ऐसी बनती है, मतलब कि वो आर्ट बना के बेच रहे हैं अपना. उन्होंने मान लो $10 या $50 का वो आर्ट बनाया, कोई बड़े बंदे ने खरीद लिया, किसी ऑक्शनर ने खरीद लिया, और भाई वो $50 का आर्ट यार $1 million में बेच रहा है. तो मतलब इट्स जस्ट अनफेयर टू द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द आर्ट. इसमें ये होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन के साथ ये चीज है कि ही इज गेटिंग अ बैकडोर कि हाँ फॉर एवरी सेल ही इज गेटिंग एटलीस्ट 10% और समथिंग लाइक दैट. वो ऐसा वो एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है रॉयल्टी का. ये चीज इम्प्लीमेंट भी अच्छी तरीके से हो रही है मेरे हिसाब से, बहुत बेटर तरीके से हो रही है. और पूरा मेरे हिसाब से ना ये चीज कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स ये जो आर्ट कल्चर वाला जो है, फिजिकल आर्ट होल्डिंग वाली जो है चीज धीरे धीरे करके बहुत कम हो जाएगी. एंड NFTs will take it over. मतलब वो इतना accessible भी है ना इतना. I'd love to know from HIMIKA, do you think women, this is a cliche question, but do you think women are getting into NFTs or any of those things, or even Web3 in general? Like जितने भी Web3 meetups में मैं गई हुई हूँ, in my opinion most of the women are in stuff related to arts or marketing. I've seen very less developers, so I do agree with what you said. Many women are getting into NFTs and all because what I've seen is mostly girls are inclined to arts and all. It may be because of the society we are brought up in, or I'm not saying. And there's nothing bad in it. Yeah, I'm not saying it's actually bad. the puck is going towards art. So yeah. AI तो developers को unemployed कर देगा 10 साल में. It will mostly be artists left and lawyers. तो lawyers तो हमेशा रहेंगे. But AI, like apart from the question, AI तो मतलब artist को भी तो replace कर सकता है ना? Not मतलब artists in general, like you can replace designers and stuff, but definitely not creators, like people who are making videos and stuff or things like that. Yeah, so but women are getting into anything. Yeah, but expand on that. Like, have you gone to a meetup, or like what are the kind of things women are talking about? Like, because I know they don't like to like gamble and shit, right? Like, no. We love it. Yatharth has lost his 100 rupees at least 10 times. Yeah, so I have lost almost 100k while trading. So I have been trading since 2K16. So yeah. और कितनी leverage के साथ? 50x. 100k में कितने zeros होते हैं बता दो. That's a great question. We'll move ahead. लाइफलाइन लेना चाहोगे? यथार्थ क्या करता है? यथार्थ keeps doing the leverage thing. तो वो 100 रुपए को 1 लाख तक बनाता है and then finally loses it all. That's been his pattern since 2016. Can't say. I think you're underestimating. Dream 11 is looking at this and seeing a great opportunity for Yatharth. Yatharth can be the brand ambassador. No. Yeah, apart from that, trading is a thing. Apart from that, like, marketing is a good thing for me, I guess. Let's see. कोई नहीं यार, इंटरव्यू नहीं चल रहा है. No, but I think, to be honest, I think you're one of the most knowledgeable people I've met in Web3 in terms of the amount of articles you've written and the kind of content that you've written, the kind of questions you ask. वो भी शॉर्ट टाइम है. मैं इसे जब मिला था, आई थिंक जब इंट्रोड्यूस ही हो रहा था, और इतने कम टाइम में बहुत अच्छे आर्टिकल्स ये शेयर करता है, और पर्सपेक्टिव भी देता है. And a very sweet human being at the same time. That's also nice. Himika, you're in college right now. और I think Yatharth is also in college and you're in college, right? तो कॉलेज में when you talk to people, वो लोग क्या बोलते हैं? Like, क्या Web3 hype है? क्या बकचोदी है? Let her answer then you answer. Let me get back to the first question about women. I'm a part of a few women-only communities like Super Women, DAO, and Web3 Women का भी they have a women-only community. Web3 Bharat ki. So I've seen very good people who are like very much invested. There are people who have invested a lot of money in NFTs.
there are creators, there are women who have invested into Bitcoin, Ethereum, there are marketeers. So yes, there are many opportunities for women as well in Web3. And what about college? Okay, what about college? मतलब कॉलेज में लोगों को क्या कॉलेज response में हाँ मतलब कि नहीं यार ये फ्रॉड है Web3 क्या तो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं यार ये है क्या Web3 क्या है भाई कम्युनिज्म इज So ग्रेट I'll talk about my college. ऐसे कम्युनिस्ट भी हो जाते हैं ना बहुत सारे लोग कॉलेज में लाइक मेरे कॉलेज में 3-4 लोग कम्युनिस्ट यार मेरा कॉलेज बिल्कुल ठेठ का कॉलेज है एंड most of the kids who were studying in my college were sons and daughters of big advocates or big personalities कि हाँ भाई अब lawyer बन जा कुछ मैं करूँगा तो बता दियो तो यार उनको तो उनका ऐसा सिस्टम था कि काफी वो तो वर्ड भी नहीं चलानी आती थी मेरा एक दोस्त था उसको वर्ड चलाना सिखाता था भाई एंड इट वाज लाइक ही वाज डम ही वाज वेरी स्मार्ट ही वाज probably one of the smartest brains I've ever known in law बट उस बंदे को वर्ड चलाना नहीं आता था वो बंदे इतने डम होते हैं टेक्नोलॉजी के लिए तो उनको तो यही लग रहा है कि मैं स्कैम कर मैं सुबह तो अपना कंप्यूटर लेकर बैठता हूँ और फोन लेकर बैठता हूँ 10 बंदों को स्कैम करता हूँ क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि मतलब कि यार ये बंदा मतलब इसके पास तेल के पैसे भी नहीं होते थे और मतलब within 1 or 2 years now he is doing well for himself for whatever reasons अब वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे मेहनत कितनी लगी है बंदे ने कितना ग्राइंड किया है सब कुछ फर्क नहीं पड़ता ये बंदा बैठ के सुबह सुबह क्रिप्टो स्कैम करता है उनको कुछ नहीं समझ आता उसके सिवा उनको कुछ भी नहीं समझ आता और मतलब मैं इफ आई ट्राई टू गिव लॉजिक कि भाई ये मतलब बिटकॉइन बहुत बढ़िया ये है तो ज्ञान पेल रहे हैं हाँ पेपर दे नहीं ज्ञान तो नहीं भाई स्कैम है खुद भी स्कैमर है एंड मुझे भी स्कैम कर रहा है नाइस बस स्कैमर पूरे दिन मेरा कॉलेज में निकनेम बन गया वो स्कैमर मतलब स्कैमर लॉयर आई हैव नो लॉजिक एंड स्कैम बैंकमैन फ्रॉड so adding to that point so it's pretty well said मतलब यार ऐसा ही है मेरे कॉलेज में भी so I am sort of a personality हाँ इसके पास शायद क्रिप्टो होल्ड होगा and he is working in Web3 is fad and shit like that वैसा सीन है but like I even started a community initiative as well in my college so it is in collaboration with AYUSH India so what we are doing there is like we are educating our like the peers about what the basics of Web3 is so I am coming from a technical college so I can share you that aspect so if you are getting into a technical college you will think कि यार अपन coding करेंगे most of the people are interested in like कि हाँ यार like we like front end सीख लेते हैं and उसके बाद हाँ blockchain developer करें I was like यार नहीं ऐसा नहीं होता if you directly want to get into the back end stuff we have that as well so वही scene है but हाँ in the end I am a scammer Which college are you from? I'm from Jamia Okay. No, but my question is कि तेरे पास तो अभी भी तेल के पैसे नहीं है तो तू कैसे स्कैम मतलब गरीब स्कैमर पहली बार देखा है ये तो भाई तो I am the busy unemployed guy to be honest The scenario. पोशक भाई आप कुछ अपने कॉलेज के बारे में बता रहे थे हाँ यार तो I was in a mass communication college so 11th-12th तक I was the typical middle class Indian guy who wanted to do IIT all of those stupid dreams that as we kids have but what happened was 11वीं class में I made a couple of videos on YouTube that went viral with this channel called Trouble Seeker Team it's not very active now it used to be like a very famous prank channel so I am a magician mind read I made those videos with them those went viral so then India's Got Talent called me I went to India's Got Talent performed for Karan Johar then I did few ad shoots eBay वगैरह के साथ तो कहने का पॉइंट ये है कि मतलब आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओ शिट देयर इज समथिंग आउटसाइड ऑफ जस्ट स्टडिंग और डूइंग द नॉर्मल रूट दैट यू कैन मेक अ लिविंग फॉर इट और जब मुझे 11th क्लास में उसका टेस्ट आ गया आई फेल्ट कि यार मैं तो एफर्ट भी नहीं डाल रहा अभी आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर फन एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट व्हाट इफ आई स्टार्ट पुटिंग इन एक्चुअल एफर्ट सो things can happen and this can change my life and why am I and I used to also ask people 11वीं 12वीं I was in Fiji sadly South Delhi bro don't ask it's a long story so but I used to ask them कि यार why are you doing this people in who are preparing for IT and all like mostly why because everyone is doing humans are mimetic creatures right हम सब एक दूसरे को follow कर रहे हैं no one has any idea एक hype बनी हुई है ना सब बायजूस जा रहे हैं आजकल जो उस टाइम पे हाइप थी फिटजी की सब एवरीवन वांट्स टू डू फिजिक्स वाला तो फिजिक्स वाला व्हाटएवर सो
So वो hype थी and everyone was doing it because of that. I was like, so am I just part of this rat race? और उसके बाद फिर मैं और 4 साल लगाऊँ, मुझे पता भी नहीं है इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है. So I just decided let's do something different. So 12वीं के बाद मेरे घर के सामने एक दोस्त रहता था मेरा. मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा मैं मास कॉम कर रहा हूँ. मैंने कहा वैसे आपके साथ एक हम सॉरी टू कट, एक साथ एक हम सेपरेट पॉडकास्ट तो पोषक भाई के साथ करने वाले, फिर भी मैं शॉर्ट में बताता बताना है. तो वो मास कॉम कर रहा था. तो आई टोल्ड हिम कि अच्छा तो इसमें क्या होता है. तो उसने कहा ये इवेंट्स और ये सब जर्नलिज्म है ना, ये सब बातें वगैरह. मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, इसका कॉलेज में हो गया. तो अगर बिल्कुल नहीं पढ़ता था, इसका कॉलेज में हो गया, तो ये वाला कोर्स कर लेते हैं, तो साथ साथ मैजिक करता रहूँगा और ये हो जाएगा. तो वही लॉजिक था. तो मैंने एग्जाम दिया, तो जिस कॉलेज में वो था मुझे उस कोर्स का बेस्ट कॉलेज मिल गया, which is what Vips is. So when I went there, I realized everyone just is either super rich or just wants to become like a model, or think of an unsustainable career, and that's what either a comedian, I wanted to become a magician. मतलब जो दुनिया के सबसे unsustainable और weird careers तुम सोच सकते हो ना, people had that, and they became like some of them are good popular actors now. So I was very lucky that I was in that Karan Johar sort of college where everyone was just chilling. There were a lot of beautiful people. हाँ वैसी वाली vibe थी बिल्कुल. तो I had fun in 3 years. So when you told your parents that I want to go for mass comm, मुझे नहीं करनी IIT, मुझे नहीं जाना engineering करना है, how did your parents take it? जैसे हम तो चाहते थे तुम magician बनो, तो फालतू में engineering करना. Seriously? मजाक करो. ऐसा नहीं. I wish Indian households में ऐसा होता. I have another question bro. जैसे कि you said कि you succeed, मतलब you somehow tasted success in 11th or 12th class with your YouTube channel or whatever happened in your life, or you must have seen money as well in those times. Do you think it becomes a barrier somehow somewhere that once you taste easy success now, or once you get a taste of that कि हाँ यार मैं तो मेहनत भी नहीं कर रहा और मेरे को सक्सेस मिल रहा है, तो do you think it somehow somewhere creates a barrier of not grinding in the channelized paths which everyone is doing, like it absolutely does. Naval का quote है ना, one of the worst things that can happen in your life is to succeed at an early trade. जैसे इसको पहली बारी में ही थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया होगा तो इसने लगा दी लेवरेज, फिर लॉस्ट एवरीथिंग. So it's not like that, buddy. I made and lost after that. Like I made a significant chunk. It's not like कि 100 रुपए लगाए and it's fucked up. But yeah. 100 रुपए लगाए 200 रुपए कमाए उसके बाद fuck up होगा. Yeah, तो who knows? Might be. This might be a true thing. तो आई डू फील कि एक तो पहली बात ये कि लोग ये नहीं समझते कि आर्ट एज अ करियर अपने आप में बहुत रिस्की बैठा है. बिकॉज एक तो पहले तुम एक बिजनेस खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, प्लस इट्स अ बिजनेस जिसमें तुम अकेले ही सब कुछ हो, ठीक है. मैं बैठ के मतलब मैंने जब मैजिक के बारे में सोचा था 11वीं क्लास में, मैंने सोचा था यार आई गेट टू परफॉर्म, आई गेट टू बी ऑन स्टेज, डोपामीन रश मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे, ठीक है. अब मैं बैठ के इनवॉइस बना रहा होता हूँ अलग अलग बिजनेस कंपनी की, हाँ सर आपका बिल नहीं आया, आपके पैसे नहीं आए, ये नहीं आया. तो यू फॉरगेट कि 80% ऑफ द बैक एंड वर्क ऑफ प्रमोटिंग योर सेल्फ, मार्केटिंग योर सेल्फ. सो व्हेन आई एक्चुअली पुटिंग इन एफर्ट आई रियलाइज इट्स लाइक रनिंग योर बिजनेस. व्हाट इट डिड गिव मी इज एन एज अर्ली इन लाइफ टू हसल हार्ड and also realize how difficult it is to run a business, and a business जिसमें आप फंडिंग नहीं उठा सकते, जिसमें आपको सेल्फ सस्टेन करना है, जिसमें कोई टीम नहीं हायर कर सकते आप. So it's like running one of the most challenging businesses ever, and that's when जब the pandemic happened, live show shut down. Mike Tyson का एक बहुत famous quote है कि everyone has a plan until you get punched in the face. So life actually punched me in the face, क्योंकि मैं सोचता था ज़्यादा क्या होगा, मैं जाके किसी रेस्टोरेंट में परफॉर्म कर लूँगा, पैसे तो मैं कमा सकता हूँ. बट मेरी कैलकुलेशन में पैंडेमिक नहीं था कि भाई आई कैन नॉट इवन गो टू फकिंग रेस्टोरेंट फॉर 2 years. सो व्हेन लाइफ पंच्ड मी इन द फेस, दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू Web3 and I realized the potential of NFTs and then everything else. That's why a gym like POSHAK is here with us. No, I think I am lucky to meet a lot of interesting people in Web3 because without this I wouldn't have. क्या एक्सेप्ट यथार्थ. देखो हम यथार्थ का बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, बट कमेंट्स में हमें कोई गाली ना दे तो हम बता दें कि हम बहुत प्यार करते हैं यथार्थ से, एंड ही इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन, इसलिए हम उसका मजाक उड़ा सकते हैं बिकॉज वी ऑल लव हिम. तो आप लोग नहीं उड़ा सकते. Very, very sweet person.
मैं प्यार नहीं करता बस ये। इसका विश्वास हो चुका है प्यार से। मैं अपने सिवा किसी से प्यार नहीं करता। आई थिंक लॉयर्स का होता है ऐसा, करना भी नहीं चाहिए, नहीं? मैं तो लॉ से भी प्यार नहीं करता। So, anyone wants to share their college love story? My college love story is with those tokens, so let's not go into that. यथार्थ जैसे वो नहीं होता कि कोई एक बॉलीवुड मूवी नहीं होती कि मेरी दुल्हन तो मेरा वो है गिटार है और समथिंग, यथार्थ मेरा दुल्हन तो मेरी टोकन है। Yeah, true. Preetam, do you have a college love story? नहीं यार, मैं तो कॉलेज में क्या बताऊँ, मैंने कॉलेज डिस्टेंस लर्निंग की है जानबूझ के कि यार मुझे अटेंडेंस का चक्कर नहीं चाहिए था, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बिना कॉलेज में जाए मतलब दूसरों को लगेगा कि यार ये कैसा, मतलब क्या सीन है इसमें, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बिना कॉलेज के भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। एंड आई एम सीइंग दैट बहुत राइज हो रहा है ऐसे लोगों का कि जो लोग कॉलेज नहीं जाना चाह रहे हैं, Or else like they are like understanding after getting into that and dropping out. Like मतलब ऐसा नहीं कि मैं ड्रॉप आउट मैंने कर लिया, पर मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ ग्रेजुएशन अपना। सबसे पहले 12th से निकलने के बाद ही ना आई थॉट कि यार अब मैं तो हूँ बेकार मार्क्स में, तो क्या करना है, क्या सीन क्या है अब 12th के बाद। तो मैंने देखा यार कि वैल्यू उनकी हो रही है जो जिनके पास स्किल है। तो मैंने सोचा कि क्या करना है, चलो कोडिंग सीखते हैं। कोडिंग सीखी मैंने, वो टिपिकल मीम नहीं आता, वो एक सर कोडिंग सिखा रहे, तो मैंने वैसे सीखी, मेरे सर के ऊपर से गई। तो उसके बाद मैंने सोचा यार कि यार मेरा माइंड थोड़ा क्रिएटिवली अच्छा चलता है, चलो कुछ और डिज़ाइनिंग वगैरह सीखते हैं। फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, फिर मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया एज ग्राफिक डिज़ाइनर। देन बचपन से क्या है, स्कूल से ही मेरे को था कि यार खुद का करना है स्टार्टअप, या फिर कुछ भी खुद का करना है। तो मैं अपने कुछ स्टार्टअप पे काम करने लग गया, फिर मैंने उसको भी ड्रॉप किया, फिर मैं एक और Web3 स्टार्टअप पे काम करने लग गया। उस चक्कर में मैंने Web3 का चीज़ें बहुत सारी रिसर्च करी। मेरा स्टार्टअप का आइडिया Web3 गेमिंग में था, अभी भी है, मतलब उसको मैंने अभी पॉज कर दिया है, अभी मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ कुछ। तो मैंने देखा यार कि Web3 रिलेटेड जो कॉन्टेंट है ना वो बहुत कम है भी तो इंडिया में कम है, तो क्यों नहीं यार एज कंटेंट क्रिएटर इसका लेवरेज लिया जाए। और मुझे एंटरप्रेन्योर्स से बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, क्योंकि मैं खुद स्टार्टअप ना कर रहा था, तो कैसे सीखे यार। तो पॉडकास्ट, I think it's a fantastic idea. It's great for networking, and I think you've also got a lot of support from good people in Web3. तो काफी cool है वो। By just to add on to one point here, do you not think you missed out on college somewhere? लगता है यार, हाँ बोलो। Because मतलब I feel कि यार ठीक है, I understand कि everybody एक बार हिट करता है कि यार आपको काम करना और अपनी जिंदगी में you have to become someone। किसी को 18 पे करता है, किसी को 19 पे करता है, किसी को 40 पे करता है भाई। मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जिनको 60 पे भी नहीं कर रहा। तो वो ठीक है, सबका ठीक है, अपने आप आता है, अपने हिसाब से आता है। बट यार I feel मतलब I have had great friends since childhood. I've lived in a society. I've had great friends. बट कॉलेज में मुझे इतने टॉक्सिक लोग मिले ना यार, मुझे मजा आ गया भाई। मैंने तो तो मुझे बोल क्या रहा है कि मतलब मुझे जाना चाहिए उन लोगों के लिए, या फिर नहीं, मतलब यार it's to have an experience. It's just so correct fun, bro. It's so much fun. तो करेक्ट। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने नेटवर्किंग का चांस छोड़ दिया है, तो मैं लोगों से कैसे मिलूँ, जो मुझसे स्मार्ट है उससे भी कैसे मिलूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, अगर तुम बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर स्मार्ट लोगों के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली तुम अगर नहीं भी कोशिश करोगे तो हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अच्छे से कोशिश कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है यार नेटवर्किंग चांस मैंने छोड़ दिया है। फिर मैंने कंटिन्यूस स्टार्टअप इवेंट्स देखने लग गया मैं। उसके बाद मैंने देखा कि Web3 स्टार्टअप इवेंट्स बहुत ही रेगुलर हो रहे हैं, और मैंने ब्लॉकचेन के बारे में ना 2020 में पढ़ा था, लेकिन मुझे ना उस टाइम मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा मैंने, और फिर मैंने देखा यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, अपने से हटके चीज़ें ये। फिर मैंने अंशुल रुस्तगी का पॉडकास्ट देखा, मैंने सोचा यार ज़रूरी नहीं है जो टेक के लोग हैं वही यहाँ पे आए, क्रिएटर्स आ सकते हैं, आर्टिस्ट आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। आप बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी प्रोफेशन है उसको आप टर्न एंड ट्विस्ट करके यहाँ पे लेवरेज ले सकते हो। ऑब्वियसली ये भी एक इंडस्ट्री है, ज़रूर मतलब कोई सा भी प्रोफेशन आप यहाँ पे मतलब कोई सा भी प्रोफेशनल बंदा यहाँ पे लेवरेज ले सकता है।
तो और साथ में इतने सारे लोग मिल गए, मतलब मुझे बिना कॉलेज के इतने सारे लोग मिल गए, और क्या चाहिए। True. Thank Yeah. you. Yeah, so adding to that point, yeah, it's true. Like, even if you are into content, you are into law, or even if you are into like a finance student or in any field, you can just directly jump into Web3 and can start exploring it out, and yeah, you can make a living out of that. भाई लव स्टोरी कौन बता रहा है कॉलेज की? Himika, you would like to Himika, share a bizarre experience in your college. मैं तो डेट कर रहा हूँ, तुम बाकी देख लो। ओहो, सही है, नाइस। किसी का तो हर वैसे अभी फिलहाल तो कर रहा हूँ, मुझे कल क्या नहीं पता। Like, I don't go college that much, so yeah, I don't know if I'll even have a handful of friends. Yeah, don't know. Yeah, can say. Like, I'm not dating anybody. No, but But I has can weird share things bizarre happen in stories. college में क्या बहुत weird चीजें होती होंगी, I'm sure, और experiences. हाँ, I'll tell you. See, यार सब लोग देखेंगे, but anyway, तो I go to GTVIT. Okay, GTVIT is a Sikh minority college. Okay. तो वहाँ पे literally नाम मत लेना। ठीक है। XYZ. And remove any religion also. Yeah. Okay. नहीं तो फिर फिर अब स्टोरी बताई नहीं सकते। हाँ, let's not get into religion. इस पॉडकास्ट में हम स्कैम्स की बात करेंगे, फ्रॉड की बातें करेंगे, लेकिन And yeah, I'll add the resume in the description. So yeah, do hire me. यार मैं देखो हायर कर लूँगा, but तू ये तो बता दे यार चलेगा। Sir, it's 100K. 100K? Yes, sir. just enough to lose again. पैसे 100 के पैसे की मतलब It's in dollars. 100 के dollars. Yes, sir. And what is the skill you provide? What do you need, sir? यार जो मुझे चाहिए वो मुझे सुबह में परोठा, दोपहर में शाही पनीर। जो मुझे चाहिए तो वो नहीं दे पाएगा मुझे। Okay, sir. So then it will be 200K. Okay. तो तू देने के लिए रेडी है? Yeah, at a reasonable good price. अच्छा भाई ये कहाँ कॉन्वर्सेशन जा रही है, रुक जाओ थोड़ा। What's the reasonable good price? तो just to everyone who's watching the podcast, यथार्थ रेट में मिल चुका है। No, yeah, just kidding. Like, yeah, यार मम्मी पापा देख रहे होंगे podcast तो देखो ये है। no. On a serious note, life is good, यार, देखते हैं, कर लेंगे कुछ तो। यार इतनी तो मतलब यथार्थ के पास इतनी कैपेबिलिटी है। To lose again. मैंने सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू एकदम किस बारे में बोल रहा हूँ? मैंने सीरियसली बोला तो like, अच्छा ठीक है, like टॉपिक चेंज करेंगे थोड़ा। Yeah. तो यार वेल्थ क्रिएशन में बात करते हैं। देखो मुझे बहुत पैसे पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। पसंद तो मुझे भी है। और किस किस को पसंद है यार? किसी को पसंद नहीं है। मैं हाँ बिल्कुल मनी माइंडेड नहीं है यार। मैं I want to donate. I want to give back to the community. I want to give back to the community. I want to Nice. Ayush is an effective altruist. I want to become like. Hey Sam, are you there? I want to give back to the society यार, मतलब मेरे हिसाब से दुनिया में अच्छा करना चाहिए यार, गरीबों की मदद करनी चाहिए। So, how much of your wealth have you donated this year? I don't donate to wealth. I donate to a lot of other things, you know, Like, with my labor. Sperm. Dude, sperm donation is a thing, यार, wicked donor. तो ब्रो जैसे कि यार अभी क्या है ना, 21st सेंचुरी में क्या सीन है कि अभी मतलब काफी लोग कहते हैं और मेरा भी मानना ऐसा है कि हिस्ट्री को अगर हम देख ले और अभी इस प्रेजेंट को देख ले तो अभी वेल्थ क्रिएट करना कंपैरेटिवली इजी है। अगर हम हिस्ट्री की उठा के देखें तो अभी तो हाउ डू यू थिंक कि इजी है? And also most of that wealth is being created in tech. yeah, करेक्ट। Some in media, but mostly in tech. absolutely. So I would say यार gold rushes are there. Gold rushes have been there in the world since ages. So इसमें like अगर अपन बैठे and if you are do any shit like
XYZ कुछ भी करो and just understand the core tech. So I'll tell you one thing, even if you are creating content or something like that, even if you are doing some non-tech job, and if you have the basics of tech, if you have the knowledge of basics of tech, then you will be leveraging in the market. That's what my point of view is. So yeah, so even if a non-tech guy, if there is a non-tech guy, उसको अगर technical knowledge है, then he can leverage in this Web3 market, I think. So for the longest time, I didn't care about money. I was an artist, so मतलब money was never a priority. मैं बस अच्छा magic करना चाहता था. I want to make people happy, and I even knew that as an artist, कितना ही मतलब पैसे कमा लूँ, right? Like even Taylor Swift is not as rich as Sam or any billionaire उठा लो. Taylor Swift is poorer than that, and she's like the most famous artist you can think of, right? Kanye West also became rich just because he had a shoe brand or all of that. He didn't become rich from music, and music is the most popular art form. And magic is the probably the rich when he started dating Kim Kardashian. Exactly. It's not about money. Yeah. So and those things, being an influencer or being a musician, is the most popular thing you can do. Magic is probably the most least popular thing you can do. So money was never the priority. It was mostly ki bhai, is this making me happy? But I have realized that there are certain things that earning money can do in India. First of all, I think everyone loves comfort. So there's a level of comfort that you can provide to your family. Correct. Yeah, and after that, I think whatever excess money you have, maybe you can put it. I like Brian Armstrong. तो उसने जो भी क्रिप्टो से पैसा कमाया, इज नाउ पुटिंग इट इनटू न्यू लिमिट हिज कंपनी जो कि लाइफ एक्सटेंशन रिसर्च कर रही है. सो व्हाटएवर मनी यू अर्न फ्रॉम बिट्स और these Web3 companies or companies that are easier to scale, like you said, because आसान है, because you're basically working on a digital, तो scale करना बहुत आसान है. You take that money and you put it into things that are more difficult. तो फॉर इलॉन के एग्जांपल में, वेदर इट्स स्पेसएक्स, टेस्ला या एटम्स में, क्योंकि हम बिट्स में तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिजिकल stuff or things that require scientific research, life extension, or maybe just funding artists. I would love to have like maybe a library or a university where artists can come and research or build new art forms in India. Like India में artists की उतनी वो नहीं है, मतलब you know any kind of art, like we don't, इज्जत बोल लो या ये बोल लो कि यार मतलब understanding भी नहीं है कि what is good art, right? हम बोलते हैं हमारा cinema sucks, but why does it suck? Most people don't understand what is good cinema, right? So just making people aware of that. I think there's a lot that can be done once you have the wealth. So wealth won't actually, after a certain point, I think I or the scam guy, we mostly earn enough money to make a good living right now. So anything we earn apart from that isse upar isn't going to have a material effects on how we live our lives. Maybe a bigger house, a bigger car or something like that. But what it can do is it can then all of that extra wealth we can rapidly change and mold society in a better way if we are better humans. But अगर हम ही चूती हैं तो फिर तो मतलब like scam was, bank fraud was doing, he was funding money basically through Democrats and buying the houses and the Hamamas. So you can also have a lot of money and just waste it all away. So आपका क्या पर्सपेक्टिव है यार? जैसे आपने बोला ना, जैसे आप आर्टिस्ट वेल्थ क्रिएशन का, मैं उससे पहले एक चीज आर्टिस्ट वाली जैसे आपने बात करी. So my girlfriend is also an artist, okay, she's a dancer. तो मैं यार बिल्कुल मतलब धंधे वाला आदमी होता है ना कि मुझे कुछ नहीं समझ आता पैसे के सिवा. मैं बिल्कुल बहुत ही क्या कहते हैं पुरानी मेंटालिटी वाला आदमी. आई डोंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट आर्ट. आई डोंट हैव द ब्रेन्स फॉर इट. तो एक दिन शी टुक मी टू अ डांस परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड शी वाज लाइक कि यार तू चल मेरे साथ. एक तो 45 मिनट दूर था भाई वो, तो लेकर मैं गया भाई. 45 मिनट दूर था, ठीक है चलो. मैं जस्ट स्टार्ट, मैंने देखा यार मतलब according to me what was happening there had no logic in my eyes or brain. क्योंकि यार वो कुछ भी कर रहे थे. एक बंदा भाई अपने हाथों में खड़ा हो गया, वो बोल रहा है डांस कर रहा है. भाई मेरे हिसाब से इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है मेरे लिए. मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जैसे आपने बोला ना कि एजुकेट द ऑडियंस एज वेल, somehow somewhere you can educate the audience. I completely understood this thing. तो I don't know, वहाँ पर एक बंदा था कि उस बंदे की ना ऐसे लहर थी वहाँ पर डांसर्स के बीच में कि मतलब this guy will come and he'll परफॉर्म अ ब्रेथवर्क डांस, ठीक है. वो बंदा यूके से
बहुत इन्वेस्टमेंट करके यूके से ब्रेथवर्क देख कर आया था, सीख कर आया था मतलब। एंड उसके डांस परफॉर्मेंस और उसकी डांस स्टाइल का यूके में इतनी रिस्पेक्ट थी कि मतलब ही वाज पेड अ लॉट ऑफ मनी टू परफॉर्म इन शोज एंड एवरीथिंग। एंड आई कुड सी कि मतलब एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड टू वॉच हिम डांस। और जब मैंने वो डांस देखा, मतलब मैं भी उसके लिए यार खड़ा हुआ, अकेला बंदा मैं हॉबेट बैठा हुआ था, मैं उसके लिए खड़ा होके गया कि यार मैं चलो उसका डांस देखता हूँ। भाई ना उस गाने में, उस डांस में गाना था, वो बस हवा की आवाज़ थी और उस पर वो ऐसे ऐसे करके अपने हाथ हिला रहा था भाई। और मेरे को इतना गुस्सा आया ना भाई, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को इतना गुस्सा, मेरे को अपनी जिंदगी में कभी इतना गुस्सा नहीं आया भाई। मतलब मैं बिल्कुल बता नहीं सकता, वो मेरे को इतना गुस्सा आया। और my girlfriend was like, you don't appreciate art, you don't understand art, तो समझ नहीं सकता वो किस बीट को कैच कर रहा था। मैंने बोला यार मतलब थोड़ा लचक भी तो होना चाहिए, लचक कुछ समथिंग भाई, मतलब जो ऑडियंस को भाई अगर मेरे को समझ ही ना आए तो उस डांस की वैल्यू क्या है, समझ लो। तो आई टोटली अप्रिशिएट एंड एडमायर योर पॉइंट ऑफ व्यू वेयर यू सेइंग दैट यू नीड टू एजुकेट द ऑडियंस एज वेल फॉर द न्यू डांस फॉर्म। बिकॉज़ मेरे को आज तक उतना गुस्सा नहीं आया भाई उस बंदे को देखकर। इंडिया में यार इसी से देख लो ना, यहाँ पे कितने म्यूजियम्स हैं, एक दो म्यूजियम है दिल्ली में, साइंस म्यूजियम, और वो भी मतलब कोई नहीं जाता। आई एम श्योर नाउ न्यू वंस आर ओपनिंग अप, सो आई वोंट से कि एक दो ही है, न्यू वंस आर डेफिनेटली कमिंग अप। बट पॉइंट अगेन देन बीइंग कि यूएस में देयर इज म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, देयर आर लॉट ऑफ दीज गुड थिंग्स दैट कीप हैपनिंग, यू नो, न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड हाइप बनी रहती है। एंड मॉडर्न आर्ट इज लाइक अ बिग करियर ओवर देयर। हाउ मेनी आर्टिस्ट यू सी, वो बहुत ही नीश कम्युनिटी आर्टिस्ट की, वो आते हैं अपने लाइक सुपर रिच, आई बीन पार्ट ऑफ दोस एलीट कम्युनिटीज, दे कम देयर इन देयर ओन नीश बबल लाइक। सो वो एक तो पूरी सोसाइटी को भी साथ लेके नहीं चल रहा, और सोसाइटी की वॉइस भी नहीं है उसमें, तो वो टॉप 0.1% लोग हैं जो आपस में ही घूम रहते हैं, और वो ही आपस में एक दूसरे को ही अरे तुम बहुत बड़े अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो उसको एक्सपैंड डेफिनेटली किया जा सकता है। और आर्ट की सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि इट हेल्प्स, जैसे आपको वो ब्रेथवर्क समझ नहीं आया, नहीं हो सकता है कि आपको समझ आने के बाद भी आपको ना पसंद आए। तो द गुड थिंग अबाउट आर्ट इज कि इट्स सब्जेक्टिव एंड इट डेवलप्स योर टेस्ट। किसी को डिवाइन पसंद है, किसी को एमीवे पसंद है, सो आई एम सॉरी फॉर एनीवन जिसको एमीवे पसंद है, बट इट इज दैट पर्सन्स टेस्ट, राइट? सो अगेन, तो उसका चॉइस है, उसका टेस्ट है। तो अल्टीमेटली व्हाट आर ह्यूमंस, एआई और ह्यूमन में यही फर्क है ना कि एआई का कोई टेस्ट नहीं है, ह्यूमन का अपना टेस्ट है। और आर्ट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आर्ट डिफरेंशिएट करता है कि भाई टेस्ट बंदे का। Adding to what you said and he said, I think like I am a person, I love watching people dance. Like if somebody is performing like a good Odissi or a good Kathak, like I get goosebumps. Like you know this, like what you said कि हाँ robots में और हम में ये difference है कि we have emotions. When we watch art, if somebody feels happy, isn't it a good thing? Like in the end, like your question was कि getting rich is easier or not, right? That is what it was. But I believe getting rich is difficult and easy. It is subjective. But even when a person gets rich, like it might not be कि he's happy also or she's happy also. We should not just focus on being a rich person, but also go into a direction where we feel happy. Yeah, that is very true. I think is quite important. मुझे ऐसा लगता है ना कि मनी की डेफिनेशन या फिर इम्पोर्टेंस कह लो, वो हमारे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ना वो प्रायोरिटी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इन 20s मेरी प्रायोरिटी वो है, ऑब्वियसली बाद में नहीं रहने वाली। बाद में मैं बस इसे एज टूल देखने वाला हूँ, एज रिसोर्स देखने वाला हूँ। और जितना मैंने देखा सुना है काफ़ी लोगों से कि कोई मिलियनर होता है या फिर जो बिलियनर होता है, वो बिलियन या मिलियन जब बनाता है, जो मतलब जो इंसान 1 लाख को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, वैसा आई डोंट थिंक एक मिलियनर देख रहा होता है। वो उसको एज रिसोर्स या फिर एज टूल देख रहा होता है। और मुझको भी ऐसा लगता है कि मनी एक टूल है और वो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अराउंड अपनी दुनिया कर लेना वो अच्छी बात नहीं होगी। उस बाद में फिर एट द एंड मतलब दुखी मिलने वाला है। I would say materialism is the biggest cause. So it doesn't matter age आपकी क्या है, अगर आप materialistic बनते जाओगे even if at an age of 80, but ये कि जितना ज़्यादा आप grow करते हो आपको पता चल जाता है कि यार ये materialist चीज़ें मेरे लिए कुछ काम की नहीं है। तो materialism is the thing which will मतलब force you to कि हाँ भाई अमीर बनते,
That's the whole crux, I guess. यार मतलब पता नहीं, मतलब मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस ब्रो, मेरे को पैसा खुशी देती है भाई। तो अब मेरे को तो मटेरियलिस्टिक कह सकते हो, हाँ ठीक है मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, बट इफ दैट्स व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस then I'm working towards it. Yeah, that's just my point of it. I'm not eating someone's money, I'm not scamming someone, I'm being the most honest person who can be out there. I'm probably grinding more than anybody of my friends are grinding. ठीक है bro, मतलब that's why I can grind as well, because यार पोशक जैसे है उन लोगों के लिए आर्ट है, तो वो आर्ट पे उतना ग्राइंड कर सकते हैं. Honestly, a lot of it is just biology. All of us have different ways of standing out. So I feel like एक स्पोर्ट्स पर्सन को पैसे की उतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज ही विल अट्रैक्ट people and women just because he is a sports person, right? Same way I feel for an artist. But if you don't have those things going for you, like a lot of people when I do magic, they come here, ये हमें भी सिखा दो, हम बंदी बटा लेंगे. That's the first question. I'm like, भाई ये बंदी बटाने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत मैंने 10 साल से मैं मैजिक माइंड रीडिंग सीख रहा हूँ, क्या मैं बंदी बटाने के लिए कर रहा हूँ? But that's the first thought that comes to their mind because they understand it's a signaling mechanism. It's like कोई Ferrari लेकर आता तो यार I also wanted, है ना, इससे attract the बंदी. But they don't understand the amount of hard work that guy has put into reach that level. So again, art, sports, or earning a lot of money, all of this are ultimately again signaling to the society in some way that you achieved something. Wealth is one signal, you know, being proficient in an art form could be another signal, being extremely fit could be another signal. So I think मुझे लगता है वैसे अब सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है वेल्थ की, और ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा था कि इसके अराउंड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर आई थिंक एक बैलेंस्ड वे में प्रायोरिटी सेट करना एज वाइज वो हमारे माइंड को बैलेंस आउट कर देती है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस 21st सेंचुरी में जिसको बैंक्स कैसे रन होती हैं और इन्वेस्टर्स कैसे काम करते हैं और गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये तीनों चीज़ समझ आ गई तो ही कैन क्रिएट वेल्थ. अगर उस और बेसिक इकोनॉमिक्स, ये चारों चीज़ें भाई बोलना बहुत आसान है यार, लेकिन I think just buy a little bit of Bitcoin and once you'll buy it, no, you'll feel कि यार हो क्या रहा है मार्केट में जानूं. And once you start studying Bitcoin ना, I think everything's connected to Bitcoin. Economics, government, technology. There is so much that just goes into it. If you just buy Bitcoin and if you have skin in the game, because now भाई आपने खरीद लिए तो आपको जानना है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, you will automatically learn so much. It's incomprehensible. You can just keep going and going. हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जितने भी मैंने सक्सेसफुल फाउंडर्स या फिर इन्वेस्टर्स कह लो, उनमें ये चीज़ मैंने कॉमन देखी. नॉट फाइनेंशियल एडवाइस बोलना जरूरी है. हाँ, उनमें मैंने ये कॉमन चीज़ देखी है कि उनको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, बैंक्स कैसे रन होती है उसकी अच्छी नॉलेज है, और ऑब्वियसली जियोपॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की नॉलेज. एनी वाइज पर्सन हैज a lot of knowledge about how systems are working behind the scenes. So Elon Musk, he studied economics and physics, and he also says that physics is the law, everything else is a recommendation. तो दुनिया में बैक एंड पे चीज़ें कैसे काम कर रही है. और नवल भी ये बोलता है कि in today's I think बालाजी बोलता है in today's world you just need to understand computer science and statistics, because behind those two things is how most of the systems are working. Computer science because everything's digital, we're living in a information sort of world, and statistics because more and more complexity increasing in the world, so more and more data is being produced. So you need, if you can understand data science, then these two things you can just conquer the world. और एक और पॉइंट है कि जैसे कि हर एक डिकेड में या फिर सेंचुरी में एक पॉइंट, एक कुछ भी एक वेव आती है जो एक गोल्ड रश होती है, और वो रियल गोल्ड रश होती है. उसके लिए सब भागते हैं कि भागो इसके अराउंड स्टार्टअप खड़े कर लो. मतलब यूज केस हो या ना हो एक अलग केस है, पर मुझे ऐसा लगता है ना, जो गोल्ड रश की तरफ भाग रहा है, अगर हमें भी वेल्थ क्रिएट करनी है उस गोल्ड रश में, अगर मतलब जो गोल्ड रश की तरफ भाग रहा है उसमें से बहुत कम लोगों की चांस है कि वो बहुत सारा सोना इकट्ठा कर ले, लेकिन भाग सारे रहे हैं. अगर हम इस गोल्ड रश में ना वो जो भागते हुए लोग हैं उनको सर्व कर देना, तो हम जो जिन लोगों ने सोना इकट्ठा करे हम उनसे ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे. बस सैम बैंकमैन फ्रॉड भी यही सोच रहा है. रनिंग एन एक्सचेंज इज द इजीएस्ट वे टू विन मनी एंड लूज मनी. बट हाँ, आई थिंक यू आर कंप्लीटली राइट. इफ यू कैन, गोल्ड रश तो है ही, बट ऑल्सो आई फील लाइक अब ये गोल्ड रश एक्चुअली बढ़ने वाला है, बिकॉज विद एवरी डेकेड टेक्नोलॉजी की पेस बढ़ती जा रही है.
for this decade it would probably be AI and Web3 where people can participate. There's also genetic revolution and of course space and defense, but उन सब में हम लोग part नहीं ले सकते unless you are actually in that industry. इसका मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे कि हर एक कॉलेजेस के पास पीजीज होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स से पास होकर के कुछ जो भी उसका टारगेट या फिर ड्रीम कंपनी जो बोलते हैं वो अचीव ना कर पाए, लेकिन वो जो बगल में पीजीज की बिजनेस है ना वो तो चलेगी ही चलेगी। तो वही है कि अगर कोई सोना ले भी ना पाए पर जो सोना जो ले रहा है उसको सर्व ही कर देना, Invest in the picks and shovels basically. हाँ। And let other people try and What do you बात हो रही है? Very good point. Very good point. सो अभी ना हम कॉल करने वाले किसी को अपनी Web3 कम्युनिटी से। So the basic बोलना क्या है? yeah. कुछ भी कमेंट किसी भी चीज़ में पर्सपेक्टिव माइक यहाँ पे है। हिमिका will call मेरे फोन से। बोलना क्या है? So what according to you is Web3? That's it. It's as simple. What is your opinion on Sam Bankman? हाँ चल ठीक है and don't say fraud, say fraud. Ask कि मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ and they asked me to call anyone in Web3 and I'm on Sam KBC. Bankman fraud, I'm on Sam KBC. Bankman freed को I am on KBC। एक I'm on लाइन में KBC. डिस्क्राइब कर ऐसा कुछ हाँ I'm on KBC and नहीं ये कोई और यशिका है ये यशिका है Sam Bankman fraud पे क्या हो गया? freed Sam Bankman fraud. I know it is free. it's fraud. Have a seat. स्पीकर मोड पे कर लेना आफ्टर कॉलिंग And उसको पास कर दियो उसके माइक के स्पीकर तक। आवाज तेज करो। मुझे लग रहा है वो बिजी होगी। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? इसमें लगता है 3 बजे कुछ काम है। Let's see. It is 3:27. But फोन पे तो पोस्ट सर कर रहे हैं। हाँ तो हो सकता है उठा Yeah, she wanted to cut. कोई और Let's try another one. Who it is? किसको कर? मुझे तो कोई नहीं पता। Same here. I don't have any connections. Like it's only the tokens that I'm connected with, and that too because What's your least favorite token? Dogecoin. नाम में बोल दो starts with P, rhymes with hexagon. rhymes with hexagon. Yeah. Can say. Why so? Peter's talking something. Let's see. Oh, even I was thinking of it. Someone said चलो सही है तो नहीं अब शायद वो भी दुबई में है। ओ यशिका कॉल आ गया। उनका यू वांट टू टेक इट बैक? स्पीकर मोड पे डाल दे। Hello. Yashika, hi. Hi, Sanskriti. Sanskrit. Great. Himika here. Great. HIMIKA. Hi, HIMIKA. So, मैं ना KBC में बैठी हूँ। केबीसी में इसको पता है तू पॉडकास्ट में केबीसी में ना बैठे। Hello. I'm here at Preetam's podcast, and we really. Am I audible? Hello. Am I audible? Hello. नेटवर्क चला जाता है। Hello. नेटवर्क नहीं आ रहा। We'll use the internet to call her again. कट जाएगा बाकी बीच। That's why we need a decentralized system to eliminate all of these. भाई प्लीज मेरे को टेक्स्ट समझाना कैसे होगा ये। So I am also in line just behind you. Hello. मेरी बोल है। Hello. हाँ. Hi, Yashika. अरे पहले मुझे लगा एक कोई नहीं. Listen to me. So we are here at Preetam's. ये देखो ये पक्का किसी ऑटो पे वाले के बगल में। हाँ बोले सॉरी। हाँ, so we are here at Preetam's podcast, and we really want to know your opinion on Sam Bankman-Fried. Okay. Actually, I have studied it, but मुझे as a human मतलब लग रहा है कि probably he literally tried अच्छे से, but he couldn't succeed. And also made some very bad decisions. Because he was mixing the companies. What? That is one thing you should never do. You should never ever
What decisions do you think? Hey Ashika, what's up? Hi. Yeah. Yatharth. Yathart. Yeah. So, what are the actions you think कि हाँ यार यहाँ पे उसने fuck up किया? Yeah. Okay. छोड़ो आशिका, बहुत बोरिंग हो जाएगा. आई थिंक यथार्थ ऐसे मजे लेना. चलो, थैंक यू सो मच. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. एंजॉय करो. ठीक है. सब्सक्राइब कर देना. बाय ठीक है. इंटरव्यू ले लेना पूरा उसका. व्हाट एक्शंस डू यू थिंक? इजी क्वेश्चन, मतलब कुछ पूछते. प्रीतम ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया. डोंट यू डेयर स्टार्ट अ पॉडकास्ट. जो क्वेश्चन नहीं कर ले भाई, बहुत हार्ड है. यू शुड स्टार्ट. I'm not getting this shit done. Sorry, sir. Podcast, sir. पैसा मैम. डन. हाँ, खत्म करते हैं हम. तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. अभी यहाँ पे रैप अप करते हैं पॉडकास्ट को गाइस. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड जो भी आप लोगों की चीज़ें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा. चीज़ें as in चीज़ें. Yeah, my resume. Okay, I got it. My resume का resume नीचे लिंक करो, पैसे दे दियो. Okay, done. और थैंक यू सो मच गाइस. रेज्यूमे डालने के लिए नीचे वो हमने बात कर ली है. It's already done. Scripted रहता है यार ये. यथार्थ को देने और लेने दोनों मजा आता है. तो मैं बस चाहता हूँ यथार्थ के मम्मी पापा ये पॉडकास्ट ना देखें. अच्छा लगेगा. तो रैप अप करते हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. Guys, subscribe to my YouTube channel POSHAK Dua. Oh sorry, Preetam's podcast. Subscribe to my marketing guy. Subscribe to Trace Network. Trace Network. Subscribe to Preetam's podcast sponsored by Desi Crypto and Quill Audits. Yes, so do subscribe to my man Preetam's podcast sponsored by Desi Crypto as well as Quill Audits. वैसे पता होगा तुम लोग को Desi Crypto and Quill Audits के बारे में. तो Quill Audits सबको पता है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग करते हैं. वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन इंडिया. और Desi Crypto Web3 मार्केटिंग में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन इंडिया है. और इनकी में जो भी वेबसाइट्स हैं इन्फॉर्मेशन वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं यार. इजी बहुत ही चिल पॉडकास्ट था. नेक्स्ट सारे पॉडकास्ट थोड़े से चिल था बट काफी इंफॉर्मेटिव था. लाइक काफी मजा आया. मुझे तो मजा आया. Yeah, +1. मैंने तो बहुत कुछ सीखा. तो थैंक यू सो मच गाइस. नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं. बाय. Subscribe.